I welcome you all to this video course on financial management, and this video lecture is prepared by VK Scholar Education, and I, Dr. Vinod Kumar, shall be taking in detail about various points of financial management in this video course. Okay, so let's start. So June 2007 UGC NET JRF Commerce examination paper is taken for this video course. So this is video number 7, and the first question is cost of capital does not mean. निम्नलिखित में से कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करता. ओके, कट ऑफ रेट डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, in rate of interest, expectation of investors for dividend, money paid to SEBI for permission to acquire capital. So correct answer is fourth, money paid to the capital market regulator, which is SEBI, for permission to get capital is not the meaning of cost of capital. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है, जैसे डिस्काउंट रेट बोलते हैं इसको, कट ऑफ रेट, this is the target rate, and the hurdle rate, minimum required rate of return, and standard return. Okay, so all these different meanings of cost of capital. So basically ये सभी जो हैं decided by the management of a company. Okay, so rate of interest on the borrowed capital is known as cost of debt. Okay, expectation of investors for dividend, so this is investors means equity shareholders. Okay, so they also expect डिविडेंट ऑन देयर इन्वेस्टिबल फंड्स फ्रॉम द कंपनी. तो पहले तीनों जो हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मीनिंग से रिलेटेड हैं. जो फोर्थ जो है इज़ नॉट रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सेकंड क्वेश्चन है फाइनेंशियल लिवरेज इज इंटेंडेड टू. सो फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है यूज ऑफ डेट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी. ओके, और फाइनेंशियल लिवरेज also result into financial risk of a firm. Okay, or it increases the financial risk of a equity shareholder. Okay, तो जब कोई कंपनी लोन कैपिटल लेकर बिजनेस करती है तो देयर इज ए सर्टेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू दी कंपनी. ओके, तो सर्टेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल कितना है. तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न ROI, सो दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं कि जब रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, सो इसका मतलब है कि कंपनी कैन इंक्रीज वेल्थ टू दी शेयर होल्डर्स. तो उसका जो डेट कैपिटल का एक मैग्नीफाइंग जो इफेक्ट है वो EPS के ऊपर आता है. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल और कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल, तो इन दैट केस देयर विल बी ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द EPS ऑफ ए फर्म. ओके, तो शेयर होल्डर्स विल गेट मोर रिटर्न्स. सो इस डेट कैपिटल का एक मैग्नीफाइंग जो इफेक्ट है, एक पॉजिटिव और फेवरेबल जो इम्पैक्ट है वो EPS के ऊपर आएगा. ओके, so correct answer is increase return on capital employed and net equity. So net equity also known as net worth. Okay, so the explanation is financial leverage is the use of funds. Which funds? Long term funds. Okay, long term borrowed capital. So this capital is borrowed at a certain cost of capital, और कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इज़ चीपेस्ट टू द फर्म. सबसे सस्ता सोर्स होता है ये फंड का, और इसका मिनिमम जो कॉस्ट है, सबसे लिस्ट कॉस्ट जो है वो फर्म को रहती है. सो दीज आर ऑब्टेन्ड एट ए फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब, सो देयर इज ए इंटरेस्ट पेमेंट बाय द फर्म टू द डिबेंचर होल्डर्स at a certain rate of interest. So, and this long term debts will increase
returns to the shareholders. Okay, so because this long term debt capital will create a magnifying effect on the EPS of a firm. So financial leverage is also known as trading on equity. So trading on equity when ROI is greater than cost of debt, so results into increase in the EPS, and we call it financial gearing also. Okay, so it was the second question. So third is, which of the following is not very much relevant in the dividend decision? Okay, so 4 points दिए गए हैं: availability of disposable profit, investors expectation for dividend, capital market condition. So industry practice is not a relevant in dividend decisions of a firm. Okay, so पहला जो है point, availability of disposable profit. Disposable profit means the cash profit. Profit must be available in cash. Okay, so that a company can pay dividend to the shareholders. Okay, so reasons क्या होता है, क्योंकि जो payment of dividend result into decrease in the cash. Okay, so there is a cash outflow from the company. तो इसलिए जो भी profits मौजूद है कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए, तो वो कैश प्रॉफिट्स अवेलेबल होना चाहिए. और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन फॉर डिविडेंड, दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखिए कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए रिटायर्ड पर्सन हैं, विडोज़ हैं. ओके, और कुछ दीज रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, दे एक्सपेक्ट ए सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टेबल फंड्स, क्योंकि वो अपने लाइफ साइकिल के जो है लास्ट फेज में होते हैं. ओके, ओल्ड एज में रहते हैं, तो दे आल्सो एक्सपेक्ट ए सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टर्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई रहता है डिविडेंड को लेके. कैपिटल मार्केट कंडीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब कोई फर्म कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करती है, तो जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, दैट कीप्स इन माइंड ए लॉट ऑफ फैक्टर्स अबाउट द कंपनी. ओके, तो बेसिकली उसका पास्ट डिविडेंड पेमेंट का ट्रेंड क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर. सो कैपिटल मार्केट कंडीशन या कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इंडस्ट्री प्रैक्टिस इज नॉट ए रेलिवेंट वेरिएबल इन द डिविडेंड डिसीजन. फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल के दो कंसेप्ट होते हैं, आपको पता है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल. और वर्किंग कैपिटल इज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ओके, सो और दैट इज कनेक्टेड विद द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ ए कंपनी. ओके, तो वर्किंग कैपिटल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम द मार्केट. ओके, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाएगा, करंट ऑब्लिगेशंस की पेमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल को यूज किया जाएगा. और नॉर्मल यूजुअल कोर्स ऑफ ए बिजनेस मीन्स एक साल के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ओके, 1 ईयर जो अकाउंटिंग साइकिल है, उसमें जो भी एक्सपेंसेस कंपनी करती है, उन सभी की जो पेमेंट है वो कैश में की जाती है. ओके, तो एक्सपेंडिचर इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस आर आल्सो fulfilled by the use of a working capital. Okay, next is okay, so there are only 4 questions in this video. Okay, so thank you very much for watching this video. Okay, so thank you.